I'm very happy and I'm thankful to the Lord that He has brought me back once again after a week to study the Word along with every one of you. और आप सबके साथ एक बार फिर से प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मुझे जो सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक हफ्ते के बाद मुझे दोबारा ये अवसर मिला, प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा हो। I want to thank Deepu. I want to thank the responsible brethren of the Believers Assembly Datia, Madhya Pradesh, for having invited me to take this series of studies. और एक बार फिर से मैं सभी प्रिय भाइयों को, खास तौर से बुंदेलखंड गॉस्पेल मिनिस्ट्री दतिया के सभी जिम्मेदार भाइयों का खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया प्रभु का वचन का अध्ययन आप लोगों के साथ करने के लिए। I also want to thank every one of you who have taken time to sit in God's presence to study His Word. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से सभी उन प्रियों को जो प्रभु का वचन सुनने के लिए तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं। I know that all of you have been praying for this kind of ministry. I know every day you have some ministry. So, because of your prayers, people like us, me and the others, we are able to take this kind of ministry. So, thank you very much for your valuable prayers. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्रिय भाइयों बहन, बहुत से लोग प्रत्येक दिन प्रार्थना करते रहते हैं, मुझे पता है। और क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा ही लोग, मैं और हम में जैसे लोग आज प्रभु का वचन को सीख पा रहे हैं, ये आप लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतिफल है, इसलिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। I'm always thankful to Brother Rajinder Singh for a beautiful introduction he gives about what we have taken last class, the omnipotent God, and he beautifully illustrated that. And he sets the tone for today's study. So I'm grateful to him, and God bless you, brother. और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिय भाई राजेंद्र के लिए, हमेशा की तरह कि आप हमेशा जो प्रभु का वचन जिसको हम अध्ययन करने वाले हैं उसके जो आरंभ है और उसकी जो नुक्कड़ है उसको आप बता देते हैं, जिससे आपका जो परिचय होता है बहुत ही प्यारा परिचय है। और अब मैं इसको बहुत पसंद भी करता हूँ और आप इस तरह से परिचय देते हैं, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। When Rajinder Bhai mentions such introduction and recaps last week study, I'm always reminded. There's never been a day that I'm not reminded of Brother Bhavani Singh, because he is another person who was such a student of the Word of God that he used to do that kind of recap. So I know that both Rajinder Bhai and Bhavani Singh take notes. They are very careful in the study. I know many of you are doing it. I just can't see most of you, excepting that these two brethren. And I'm always reminded of Brother Bhavani Singh when Rajinder Bhai speaks. और हमेशा की तरह मैं मुझे याद आता है जिस प्रकार से भाई राजेंद्र जो मेरा परिचय कराते हैं, उस परिचय से होता ये है कि मुझे जब जब भाई राजेंद्र जो पूरे हफ्ते भर का जो क्लास है जिसको हम लोगों ने सीखा है उसके बारे में जो परिचय देते हैं, वो परिचय मुझे स्मरण दिलाता है और याद दिलाता है। एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं याद ना करता हूँ हमारे प्रिय भाई भवानी सिंह का, जो हमें स्मरण दिलाते हैं। वो एक प्रभु का वचन का ऐसा विद्यार्थी थे जो बड़ी ही लगन और उत्सुकता के साथ में प्रभु का वचन सीखते थे और लिखते थे, और उसी प्रकार से वो उनका परिचय भी दिया करते थे। इसलिए जब जब भाई राजेंद्र मेरा परिचय देते हैं पिछली क्लास का, मुझे पता है कि भाई राजेंद्र लिखते हैं और बड़े लगनशीलता के साथ प्रभु का वचन अध्ययन करते हैं। इसीलिए मुझे उनकी ये स्मरण आती है। मैं उनको मिस करता हूँ, हर दिन स्मरण करता हूँ। You see, for people like us who take these kind of studies, we put in a lot of effort. And when we hear feedback like Brother Rajendra Singh, Brother Bhavani Singh, and many of you, Jitendra, and a few others, all of you who take notes and who are able to recollect what is being taught,
You know, that is a great encouragement you are to us. You know, I think the Lord gives people like all of you as an encouragement for people like us. That is why we're able to carry on in this ministry. और प्यारो, जिस प्रकार से खासतौर से विद्यार्थी जैसे कि भाई राजेंद्र सिंह हैं, भाई भवानी सिंह थे, और आप में से बहुत से लोग, भाई जितेंद्र हैं, और भी बहुत से लोग आप में से बड़े, मुझे पता है आप लोग बड़ी उत्सुकता और लगन के साथ में प्रभु का वचन को सीखते हैं। और जब आप जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो पिछले हफ्ते में क्या सीखा है आप लिखते हैं, और जब आप जो बोलते हैं, याद करते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, ये चीज जो है मेरे जैसे शिक्षक को जो है बड़े उत्साह मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वरन उसका प्रतिफल हम लोग इस प्रकार से आप वचन को सीख रहे हैं हमको मिलता है। Wonderful. To God be all the glory as we study His word this evening. इस संध्या के समय में आज इस प्रकार से हम प्रभु का वचन का अध्ययन करते हैं, तो All right, हम प्रभु के नाम की महिमा हो। we all know that we are meditating or we are studying Psalm 121. हम सभी लोग जानते हैं कि भजन संहिता 121 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। We are now trying to answer 3 questions pertaining to this psalm. और हम लोग अभी जो 3 सवाल हैं जो भजन संहिता 121 के आधारित हैं, उन 3 सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। When we understand the answers to the 3 questions, you will totally understand Psalm 121. जब हम जो है उन 3 सवालों का जवाब पूरी तरह से दे लेंगे, तब हम पूरी तरह से भजन संहिता 121 को समझ पाएंगे। And thank you, Deepu. Before I forget, thank you, Deepu, for being available for today's translation. God bless you. Deepu, thank you. नहीं, उसके मुझे थैंक यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। Thank you. So the 3 questions are, the first question, who is this God who keeps us? और उनमें से सबसे पहला ये जो सवाल है, और वो सवाल ये है कि आखिर वो परमेश्वर कौन है जो हमारा रक्षक है। The second question, what does keep mean? और दूसरा सवाल जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और वो है रक्षक करने का मतलब क्या, रक्षा का मतलब, रक्षा शब्द का मतलब क्या है। And the third question, is it actually true that God keeps us, that is me and you, from all evil? और तीसरा सवाल है कि वो जो परमेश्वर क्या वास्तव में मुझे और आपको हर एक बुराई से बचाता या रक्षा करता है। All right. Now, the first question, who is this God who keeps us? We are still studying. We have not completed, we have not exhausted the study about who is this God who keeps us, about whom the psalmist writes in Psalm 121. भजन संहिता 121 में वो भजनकार कौन से परमेश्वर के विषय में लिखता है कि वो हमारा परमेश्वर रक्षक है, और वो कौन परमेश्वर जिसके विषय में अभी हम लोग उसी सवाल में अध्ययन कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। You see, last week we studied that he is an omniscient, Omnipotent God, omnipotent God, right? He's an omnipotent God, all-powerful God. और पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो सीखा था, वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And as Brother Rajinder Singh beautifully brought out that illustration, I give you an illustration about electricity. और एक बहुत ही उत्तम जो नमूना और उदाहरण हमने उसके विषय में दिया था, भाई राजेंद्र उस नमूना, उस उदाहरण को जो लाइट की करंट के विषय में उन्होंने दिया था। You see, electricity, as we all know, each of our houses has got power, has got electricity. और हम सभी लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि हम सभी, हर एक व्यक्ति के घर में प्रभु का पावर, लाइट हमारे हम सभी के घर में है। And this light comes through the state board and provided by the central board. और इस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि जो लाइट है, जिसका अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथ में रहता है। And the source of this power is through water. और इसका जो स्रोत है इस
वो पानी के से ये लाइट बनती है, उसके बाद फिर ये लाइट हम तक पहुंचता है। All right. When we talk about omnipotent God, the power is in the hand of God. I'm giving an example. The power is in the hand of God. The source of water, that is also in the hand of God. So God is not dependent on any other person, any other thing to take care of you, to provide for you. Hope you understood this. और मैं आपको जो उदाहरण देना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में, उस कार्य को करता है। और उस जिस प्रकार से जो स्रोत है, और जो स्रोत जो है उसमें जब किसी भी चीज की कमी या जरूरत पड़ती है, तो वो सारे स्रोत, हर एक चीज का स्रोता कौन है? हमारा परमेश्वर है, उसी के नियंत्रण में है। और उसके बिना या उसकी सामर्थ्य या शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। You see, brothers and sisters, anything that exists, pardon me, anything that exists in this world or in this universe, anything and everything that you see that exists, it exists because of whom? The Lord God Almighty. मेरे प्यारों, इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं और जो कुछ भी आज इस संसार में है, वो सब क्यों है? हम जिसको देख रहे हैं वो सब कैसे है? क्योंकि वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व है, और उसी की सामर्थ्य से अभी जो कुछ हम देखते हैं उसी के अनुसार बना हुआ है। You see, the sun, the moon, the stars, the sea, the water, the land, the wind, the rain, whatever you name it, the trees, the animals, the birds, the fishes, anything you depend on in this world, anything you depend on in this world, you know who's the source? That source is God Almighty. That's why he's called the omnipotent God. इसलिए मेरे प्यारों, उस परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर कौन है? हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं, नदी, तालाब, झरने, पहाड़ और वादियां और तराइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़, गुफाएं और उड़ने वाले पक्षी, रंगने वाले जीव जंतु, जानवर, इंसान और बड़ी से बड़ी चीज इस संसार में जो अदृश्य लगते हैं, ये सब चीजें जिन जिनका हम नाम देते हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते, समझते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं, जानकारी हमें मिलता है। यद्यपि जिन चीजों को हम नहीं भी जानते हैं, वो सब इसीलिए हैं क्योंकि उनको परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए उस परमेश्वर का हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। Listen, brothers and sisters, you don't have to believe me, but let's turn to Colossians chapter 1 and read verse 16 to believe what I said. और आप मेरी बात को ना विश्वास ना कीजिए, लेकिन आप मेरे साथ में कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय 16वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। Colossians chapter 1 and verse 16. और कुलुस्सियों उसका 1 का 16। क्योंकि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Yes. Wonderful. God bless your sister. Thank you for reading it immediately. You have quick, nimble fingers. You took the reference immediately. That is a special blessing from God. So God bless you. Now let's read another reference. Psalm 19 verses 1 to 4. भजन संहिता 19 का 1 से 4 हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा आया बात भजन 19 1 to 4. 1 से 4। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना तो कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। Thank you, sister. God bless you. You see, both these verses are more than sufficient for you to understand all that I said till now. और अभी तक मैंने जो भी बातें आपसे कही हैं,
प्यारो, ये बातें आपको जो बातें मैंने अभी तक कही हैं उनको समझने के लिए, उनका प्रमाण परमेश्वर के वचन के आधार समझने के लिए काफी है। You see, the power of God is unfathomable, meaning you can never understand the power of the omnipotent God we are talking about. प्यारो, जिस परमेश्वर की चर्चा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को समझना हमारी सोच से परे है। You see, think of the most difficult task on earth. सोच लीजिए, अपने मन में सोचिए, इस धरती पर सबसे कठिन कार्य कौन सा है। And if there is a person who can handle that task, who can complete that task, what would you think of that person? अब सोच करके देखिए कि वो जो सबसे कठिन कार्य है और कोई व्यक्ति उसको सफलतापूर्वक कर लेता है, आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? Now, similarly, think of a God who can do many multiple times of the most difficult task on earth. सोच करके देखिए, अभी वो उससे कई गुना बढ़ करके कठिन कार्य को, वो कार्य को करने की क्षमता किसमें है? परमेश्वर में। So anything, brothers and sisters, that you see in this world, even what is made by man, those which cannot be made by man, those which are made by man, everything, brothers and sisters, come under the power of the omnipotent God. He is the one who has given man, whoever the wisest man on this earth is, given him the wisdom to create whatever we are using now, you're seeing now, or whatever it is. और मेरे प्यारो, अभी तक हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, जिनको हम लोगों ने शामिल किया है, उन सब को जो है बनाने का, उन सब को चलाने का सामर्थ्य और शक्ति उस परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। See, the verses we read in Colossians and Psalm, they reveal to us the awesomeness of God, which means when you say awesome, indescribableness of God. और जब हम मेरे प्यारो उस परमेश्वर की अदृश्यता की बात करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, इसका मतलब है कि हम उस परमेश्वर के ईश्वरत्व का व्याख्या करना या विस्तार रूप से व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है। Okay, I'm going to ask you a question. Now answer me this question. You can unmute and answer this question. अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपना उस माइक को खोल करके जवाब दे सकते हैं। When you come out of your home, you look at the sky. Can anyone count the stars and tell me how many stars are there? अभी रात में अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल करके आता है और बाहर निकल के आने के बाद में आकाश की ओर देख करके कितने तारे हैं आकाश में, क्या कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते। No one. You see, that what you look at the sky is called a galaxy. और जिस आकाश को आप देख रहे हैं उसको गैलेक्सी बोलते हैं। The countless stars that you see there is called a galaxy. और जहां पर अनगिनत तारे हैं उसको जो है गैलेक्सी कहते हैं। There are trillions of galaxies. Trillions means 1,000 crores. No, trillions means trillions is 1,000 100 crores. Trillions is 1,100 crores. और जो जितने हम लोगों ने अभी जो जितने इस सितारों की galaxy is a group of stars. और जो गैलेक्सी है जिसमें एक समूह के रूप में बहुत सारे अनगिनत सितारे रहते हैं, उन सितारों को मान करके चलिए कि 100,000 करोड़ की संख्या में है वो। Correct. All right, more or less that. All right. See, those trillions of galaxies has been created by God. और मेरे प्यारों, वो हजारों करोड़ जो गैलेक्सी, ऐसे ही गैलेक्सी
उस परमेश्वर की वो द्वारा बनाए गए हैं। I was reading, there is one particular star, I don't know the name, but it is codified by a number, R136A1. A1, that is how it's coded. R136A1. That is supposed to be the massive, the most brilliant, brightest star in all of the universe. और मेरे प्यारों, एक उन सितारों में से एक सितारा ऐसा है कि हजारों लाखों सितारों के बीच में सबसे अद्भुत और चमकीला सितारा, जिसका जो उसका नाम तो R1 ऐसा कुछ करके कोड उसको दिया। R136A1. R136A1। That's Yes, sir. that's the code given for that star. There's no name. I don't know that name. R63 R136A1. R136A1। Yes, uncle. That is the most massive, brightest star in all of the world, in all of the universe. और सारे पूरे जो ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा और सबसे चमकीला जो सितारा है, R136A1 करके जिसका कोड दिया गया है, वो सितारा है। There is something known as a luminosity. Luminosity means for a house, what is the lighting power that is required? Because you've got 40 watts, 60 watts, 100 watts, 200 watts bulbs and all that, isn't it? Now, for a house, basic what is required, what power, what light is required is determined by a unit called the luminescence. और इसीलिए मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हमारे घरों में आजकल हम लोग क्या है 10 वाट, 20, 25, 100 वाट, 200, 50 वाट, 70 वाट, इस प्रकार के क्या है बल्बों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घर में क्या करते हैं, रोशनी को पैदा करते हैं। उसी प्रकार से जो एक घर के लिए लाइट का, जो प्रकाश की कितनी गुणवत्ता की जरूरत पड़ती है, उसकी गुणवत्ता को लुमिनोसिटी के जो मापन यंत्र है, जिसके द्वारा आंकड़न लगाया जाता है कि एक घर में कितनी लाइट की, कितने प्रकाश की जरूरत पड़ सकती है। All right, now listen to this very carefully. Those of you who are interested in astronomy, who are interested in mathematics, we all know how bright the sun is it not? और मेरे प्यारो, जो लोग जो एस्ट्रोनॉमी में और गणितज्ञ विषय में astronomy is Varnashastra, yes. यस, वर्णशास्त्र और गणित शास्त्र, इन दोनों में जो भी व्यक्ति रुचि रखने वाले हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ध्यान पूर्वकता से सुनिएगा। हम सभी लोग जानते हैं सूरज, how bright the sun is, और हम सभी लोग जानते हैं कि सूरज कितना चमकीला है। And you know, this brightest star that I spoke to you about with the code, you know how bright that is? और जिस स्टार के विषय में, जिस तारे के बारे में मैंने अभी बताया था, उस जो कोड मैंने आपको बताया R136A1, वो सितारा कितना चमकीला आपको पता है? You know, that star is 87 lakh solar units more powerful than the sun. और आपको पता है कि ये जो सितारा है, वो सितारा सूरज से 87 यूनिट सोलर का जो यूनिट बनते हैं, उसके 87 लाख गुना ज्यादा चमकीला है ये सितारा सूरज से। Oh, for you to simply understand that, we know how bright the sun is. 87 lakh times more brighter than the sun. Keep it that way. और आप देखिए कि 87 लाख गुना से ज्यादा सूरज से ये सितारा, जिसके विषय में हम लोगों ने बात किया है, R136A1, ये जो सितारा है, वो सितारा सूरज से 87 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। Now, who created that brightest star on this earth? और उस तारे को
इस धरती पर, यस, ऑन द अर्थ अंकल और स्काई। Yes, in the sky. That is when I say earth, I talk about the universe. और जो सूर्य ब्रह्मांड में इतने चमकीले सितारे किसने बनाया है? The Almighty God, the omnipotent God. कोई और नहीं वरन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही ने उसको बनाया, सृजा है। You see, now I'm just giving you a feel of how powerful the God that you and I worship is. और मैं अभी आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ पाए, आपको अनुभव मालूम चल जाए कि कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। Okay, now one more interesting aspect, scientific aspect I'll give you. You want to know the brightness of the sun in degrees? और अभी मैं आपको एक और रुचिपूर्ण दृश्य में आपको बताना चाहता हूं वैज्ञानिक रीति पर। हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि सूरज कितना डिग्री तापमान सूरज में रहता है। You see, we generally know 40 degrees, 44 degrees, 46, 47 degrees and all in the north, Jaipur, Delhi, maybe in your place and all that. The temperature in summer goes up to 46 and all that, isn't it, Deepu? Yes, uncle. 46, so 40. This time it was 49. 49. Some place, yeah, 40 to 49. 49, 40. If you go to the Gulf, it is more than 50, right? In the Gulf, the temperature is more than 50. So we all know that. We already know in less than 100 degrees centigrade. Yes. और हम लोग सभी लोग जिस प्रकार से जानते हैं वर्तमान का तापमान हमारे उत्तर भारत में या जो खाड़ी वाले देश हैं उन देशों में हम जानते हैं उत्तर भारत में अधिकतर गर्मियों के मौसम में जो है तापमान 50 डिग्री, 49 डिग्री, 51 डिग्री, या फिर हम जब खाड़ी देशों में जाते हैं उधर में 50 से हमेशा ऊपर तापमान रहता है और हम 100 से नीचे का ही अभी तक ये जो तापमान है उसको हम जानते हैं। All right. Now, the temperature of the sun, the center of the sun, you know what is the temperature? लेकिन मेरे प्यारों अभी सोच करके देखिए, धरती पर इतने दूर जो है इतना तापमान है तो सूर्य का कितना तापमान होगा? You know, it is 14 million degrees. You know, 1 million is 10 lakhs. So 14 million into 10, 140 lakh degree heat is at the center of the sun. और मेरे प्यारों जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि सूरज का पूर्ण तापमान जो उसके केंद्र में जब हम देखें या उसको नाप करते हैं तो 140 लाख डिग्री जो तापमान वहां पर हमको देखने को मिल जाता है वो सूरज का। And the brightest star is 87 lakh times more than the 140 lakh degrees of the sun. और जो R136A1 जो सितारे की चर्चा हम लोगों ने किया वो जो सितारा इस सूरज से 87 लाख गुना ज्यादा तापमान उसमें रहता है। All right, now frankly tell me how many of you understood what I said just now? अभी आप लोग ईमानदारी से आप में सब लोग बताना कितने लोग हैं जो इस बात को सीखे हैं। Unless you have written it down in paper, you will not understand whatever I spoke just now. अगर जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है क्या मैंने आपको सिखाया अभी। Don't worry about that, about writing. I just gave you an example. आप चिंता ना करें लिखने के विषय, मैंने आपको एक उदाहरण और नमूना दिया। You see how difficult it is to understand the brightest star. Leave that. How difficult it is to understand even the brightness of the sun. 140 lakh degrees. How can we understand the temperature of the sun? और मेरे प्यारों देखिए कितने किस तरह से हम लोग आखिर सूरज की उस चमक रोशनी को, यदि हम लोग सितारे की रोशनी को नहीं समझ पा रहे, सूरज की रोशनी को नहीं समझ पाते, तो सोच करके देखिए जो सितारे की जिसकी हमने चर्चा की उसको हम कैसे समझ सकते हैं। You see, when we cannot understand the sun, when we cannot understand the brightest star's power, how can you and I understand the power of God?
और मान के चलिए मेरे प्यारों, हम जो सबसे चमकीले सितारे की यदि ताकत को हम लोग नहीं समझ पाते, और हम सूरज की क्षमता को और उसका तापमान को यदि हम नहीं समझ पाए, तो सोच करके देखिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं। We can only understand very little about what is spoken about God in the Bible. और हम केवल बहुत ही थोड़ा समझ पाएंगे प्रभु ने बाइबल में क्या कहा है। You see, the Bible cannot write everything. The Bible has not captured everything in the Bible. क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर हर एक चीज जो है अंकित नहीं की गई है। Because if the Bible has to capture everything about what God did from the beginning until now, or until the Bible came into our hands, you will have to carry volumes and volumes and volumes and volumes of Bibles. और अगर मेरे प्यारो हमको जो है बाइबल को समझना है जो परमेश्वर के विषय में लिखी है, अगर हम उसको जो से शुरुआत से लेकर के सृष्टि के समय से अभी तक जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, अगर हमें उसको समझना है, तो हमें बाइबल के कई और वॉल्यूम, कई और टीका, कई और संस्करण बाइबल के, हजारों संस्करण बाइबल के जैसे लिख जाएंगे, फिर भी परमेश्वर के द्वारा रचाई गई सृष्टि का वर्णन उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। I hope, brothers and sisters and dear believers, I have been able to kindle your thoughts about what a great God you and I have. We can never ever imagine or understand this God apart from what the Bible tells us. और मेरे प्यारो प्रियो, हम अपनी इस सीमित क्षमता से उस परमेश्वर के शक्तिमानता को, उसकी सामर्थ्य को कभी समझ नहीं पाएंगे। You see, just to tell you frankly, the explanation I gave you, I was trying to collect my minds and give you the explanation. I've got a slight headache. और मेरे प्यारो, जो जो विस्तार, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, वो मेरे मन में आपको देने के लिए विचार आया। No, I've got a slight headache now because I was trying to focus and to tell you how big a God is. I've got a slight headache right now. और जब हमें Understood? अंकल जी जो है, जब इसके विषय में विस्तार रूप से हमें जब बता रहे थे, इसके विषय में सोच रहे थे, जैसे उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला इस बात को व्याख्या करने के लिए, अंकल का सिर में दर्द होने लगा। आप समझ रहे उसकी मतलब को? You see, that is the power of God. हाँ मेरे प्यारो, यही वो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वो हमारा शक्तिमान परमेश्वर है। You see, the brightest star, the sun, the moon, everything draws its power from whom? That God whom you and I call God, we call Abba Father, we worship him, is it not? And That yes, God is the God who gives power to that R136A1, the sun and everything. Understand that. और मेरे प्यारो, इस चीज को आप सुनिश्चित कर लीजिए, जब प्रभु के स्तुति करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, इसको अब्बा पिता कह करके पुकारते हैं, हे प्रभु कह के बुलाते हैं, वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर है जिसने R136A1 के सितारे, चमकीले, सबसे ज्यादा चमकीले सितारे को भी प्रकाश देने वाला, सूरज को प्रकाश देने वाला कौन परमेश्वर है? वो ताकत, जो चमकीलापन देने वाला प्रभु परमेश्वर, जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। कितना महान हमारा प्रभु है। Oh, brothers and sisters, have you been able to at least realize how big our God is? और प्रिय भाइयों बहनों, आप में से कभी किसी ने भी इस चीज को कभी भी सोच करके देखा है, कभी इस बात का विचार किया है हमारा परमेश्वर वास्तव में कितना महान है? All right. While preparing this message, I read an illustration. Let me mention that to you also now. और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। In 1715, King Louis of France, he died.
1750 Yeah. 1750 में जो लुइस राजा था, France, King of फ्रा, France. फ्रांस का राजा थे, वो मर गए, उनका देहांत हुआ। He died after reigning as king for 72 years. और वो राजा की गद्दी पर विराजमान होकर के 72 साल तक वो राज्य करता रहा। And history calls him the greatest king. और इतिहास जो है उस राजा को सबसे बड़ा राजा का दर्जा दिया है, Because he called himself the great. क्योंकि उसने अपने आप को स्वयं महान बताया। And then you know what? He always declared that I am the state, meaning I am everything. That is what he declared. और मेरे प्यारो, वो राजा ने अपने आप के विषय में क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। You see, his palace or his court is the most magnificent in the entire Europe. और पूरे यूरोप में उस राजा का जो महल है वो सबसे अति सुंदर और आश्चर्यचकित करने वाले महल हैं, उनमें दृश्य हैं। Now, Europe consists of 50 countries. जो यूरोप है जिसके अंदर 50 देश आते हैं। You see, India is one country. भारत एक देश है, Sri Lanka is one country. श्रीलंका दूसरा है, Pakistan is another country. पाकिस्तान तीसरा है, Bangladesh is a country. बांग्लादेश अलग दूसरा देश है। Now, these all come in Asia. Like that, in Europe, there are 50 countries. And for all the 50 countries, this man, King Louis of France, was the emperor. और ये सारे देश जो हैं वो सारे एशिया में आते हैं। उसी प्रकार से ऐसे ही 50 देश यूरोप के आते थे जिन पर राज्य करने वाला ये जो फ्रांस का किंग लुइस जो राजा था। Now, his funeral was arranged in a very spectacular, magnificent way. उसका जो का अंतिम क्रियाक्रम है, फ्यूनरल, उसको जो है एक बहुत ही अद्भुत और यादगार तरीके से मनाया गया। Now imagine one of our leaders, national leaders. You must have all seen Indira Gandhi's funeral. You must have seen Rajiv Gandhi's funeral. You must have seen some of the chief ministers' funeral, right? Now some of these top people's funeral, imagine that. What all they do and how magnificent those funerals are. और सोच करके देखिए, हमारे भारत के जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिनका देहांत होने के बाद में किस प्रकार से उनका जो देहांत होने के बाद में उनका फ्यूनरल किस प्रकार से किया जाता है, सोच करके देखिए। You see, this King Louis's body was kept in a golden coffin. You know, all of us have seen a coffin, how big that box is. That whole box was in gold. और आप देख करके देखिए कि उस राजा का शरीर जो है उस सोने के ताबूत में रखा गया। उस ताबूत को हम सभी लोग जानते हैं कितना बड़ा वो ताबूत होता है। All right. Now, this coffin was kept in the cathedral. It's a Roman Catholic church. It was kept in the cathedral. और ये जो उसका शरीर है और इसको जो ताबूत को रोमन कैथोलिक के जो कैथेड्रल करके है उसमें उसको वहां पर रखा गया। And the order was given to the cathedral, to the church, to switch off all the lights, to have only one special candle kept on the coffin. और उसके बाद फिर जो कैथेड्रल के जो लोगों को उनको कहा गया कि सारी लाइटें बंद करके केवल एक विशेष जो मोमबत्ती है उसको इस कॉफिन के ऊपर जलने दो। You know, this was to show that the whole power is in the hands of Louis. When he went away, all the power is gone, all the light is gone. There's only one little light, which is the candle light for everyone. This is just to dramatically show how great this King Louis was.
और इसको जो है नैतिक रूप से इस बात को समझाने के लिए वो लाइट जो जैसे ही उस पर जलती थी, क्या जो मोमबत्ती, तो वो मोमबत्ती क्या करती, पूरे उसमें वो जो प्रकाश को फैलाती थी, इस बात को दिखाने के लिए कि कितना महान ये जो लुइस राजा था। So thousands of people were waiting for the funeral service to start. और हजारों हजारों लोग उसका जो है अंतिम क्रिया का जो कार्यक्रम आरंभ होने का प्रतीक्षा में थे। The bishop of that cathedral, Bishop Massillon, he began to speak. और वहां का जो बिशप मैशिलोन था, वो इस प्रकार से वचन प्रचार करने लगा। He started the funeral service by speaking. और उसने इस अंतिम क्रिया संस्कार को इस वचन से आरंभ किया। Before speaking, you know what he did? और कहने से पहले आपको पता है उसने क्या किया? He slowly bent down, he reached out to the candle, and what do we normally do to blow off the candle? We either with our fingers we snuff it, or with the book we snuff it. He did that and took away the light of the candle. और उसने वहां प्रचार करने से पहले वो व्यक्ति सब गया और उस जो मोमबत्ती जो जल रही थी, उस मोमबत्ती क्या किया, उसने या तो हम हाथ से या किताब से उसको बुझा देते हैं, और बुझा करके उसने वैसा ही किया, वहां से उसको हटा दिया। And then you know what he said? His opening words, you know what was it? और उसके बाद फिर उसने क्या किया, आपको पता उसने क्या कहा? The Bishop Massillon said, "Only God is great." और उस बिशप ने एक बात कही, उस शब्द को उसको ऐसा काम करने के बाद में उसने कहा, केवल और केवल परमेश्वर ही है जो महान है। Because this King Louis kept on telling everyone that he is the great. The whole state, everything depends on him. So other people also believed it. They were trying to dramatize that. But this Bishop Massillon, he put out the candle. And how he started the funeral is saying, only God is great. और मेरे प्यारो, बहुत से लोगों में इस राजा ने ऐसा दावा किया था कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैंने जो कुछ किया हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उस अहदे को वो स्वयं मैं अपने आप को ले रहा था। और इस बिशप ने क्या कहा, सबसे पहले उसके ऊपर जो मोमबत्ती रखा गया था उसको हटा करके, और उसने को आरंभ के शब्द को कहकर, केवल और केवल परमेश्वर ही सबसे महान है और सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है। We are believers in God. God is bigger than our problems. मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से कई गुना ज्यादा बड़ा है। When the problem like storm hits us and the ground beneath us is as if we are going to sink. और मेरे प्यारो, जब समस्या आंधी के समान हमारे सामने आ जाती हैं और धरती मानो हमारे लिए फट जाती, जिसमें हम धंसते चले जाते हैं, When those things happen, remember, we can rest in peace, knowing that God Almighty, the omnipotent one, stands by my side or our side. और इस मेरे प्यारो, हम लोग शांति के साथ विश्राम करने के लिए चले जाएं, इस बात को जान करके मेरे जाने के बाद में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मुझे पता है। You see, let's read Zephaniah chapter 3 verse 17 to confirm that. और हम लोग इस बात को प्रमाणित करने के लिए सफन्याह की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, Chapter 3 verse 17. 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंदित से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Thank you. You see, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save us. देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में क्या है, पराक्रमी है।
All right, let's read another one. Psalm 27 and verse 1. एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 का 1। Psalm 27 verse 1. 27 का 1। यहोवा परमेश्वर की ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? Thank you very much, brother. You see, look at this beautiful verse. The psalmist says, David. You see, David is Israel's second king after Saul. और देखिए मेरे प्यारों, दाऊद राजा कौन है? साउल के बाद में इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद। And look at what he prayed. और आप देखिए कि वो क्या कैसी प्रार्थना कर रहा है। He said, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? और देखिए दाऊद क्या कहता है इस बात को, वो कह रहा है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? Okay, what is the word given, Deepu, in Hindi? The Lord is the stronghold of my life. Stronghold. दृढ़गढ़। All right. Now, stronghold. I was reading this verse just now, what came to my mind? You see, in the buses when you travel, if you're standing, what do? You cannot stand without holding anything, isn't it? Because the bus is moving, the bus is stopping. When the bus moves, suddenly you will fall. When the bus brakes, you will fall. So what do? On the top of the roof of the bus, they've given you some handle to hold, isn't it? Yes. और देखिए मेरे प्यारों, जो जैसे कि हम लोग बस में जब यात्रा करते हैं तो बिना हम पकड़े जो बस में दिए हुए रहते हैं, उसकी जो बस की छत होती है जिसमें उनको पकड़ने के लिए दिया जाता है, अगर हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे, हम खड़े हैं तो क्या होगा? बस चलेगी, तब हमको झोंका लगेगा, जब ब्रेक लगाएंगे तो हम गिर भी सकते हैं। इसलिए और हम गिरे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बस को जो ऊपर जो हमारे ऊपर लगे रहते हैं हाथ से पकड़ने के लिए, तब हम उसको मजबूती के साथ खड़े रह पाते हैं। You see, anyone who gets into the bus will search for something to hold and stand or hold and move. और हमेशा हर एक जन जो उसमें खड़े रहते हैं, उसको कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए वो खोजते हैं, जिससे उसके सहारे वो खड़े रहें। Now listen carefully, brothers and sisters. अभी ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाइयों बहनों। See, the psalmist David is saying here, the Lord is the stronghold of my life. You see, for the travelers in the bus, what is the stronghold for them from falling or from hurting themselves? That bar or that sling, whichever they're holding, that is their stronghold for their journey. और देखिए मेरे प्यारों, जो यात्रा में बस में यात्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो जिससे कि वो गिर ना जाए, जैसे यात्रा करते हैं खड़े होकर के जा रहे हैं, वो किसी न किसी सहारे की ढूंढते हैं जिससे कि वो उसको जिससे कि वो गिर ना जाए। उसको जो ऊपर जो पाइप लगा रहता है, जिसको अपन पकड़ लेते हैं, पकड़ने के लिए जो डंडा लगा रहता है या कुछ और पकड़ने का सहारा रहता है, जिससे हम लोग गिर ना जाए। सोच करके देखिए दाऊद राजा क्या कह रहा है, वो परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? You see, for me in this life, he's saying the Lord is the stronghold of my life. So, brothers and sisters, for you and me, the stronghold of our life is not the money, it's not my relatives, it's not the church, it's not people of God, it's not anything that you think. My stronghold for me in my life in this world is whom you know? The Lord. That is what David is saying. मेरे प्यारों, इस संसार में मेरे और आपके लिए कौन है वो जो दृढ़गढ़? क्या है? पैसा नहीं है, मित्र नहीं है, और क्या बोलते हैं, रिश्तेदार नहीं, परिवार का कोई जन नहीं। इस संसार की धन दौलत और ऐशो आराम और दुनिया की सारी ताकतें हमारे लिए वो मजबूत गढ़ नहीं है। लेकिन पता है आपको क्या है हमारे लिए मजबूत गढ़? कोई और नहीं वरन हमारा जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। The Lord is the omnipotent God. He is our stronghold. वो हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा दृढ़गढ़ है। All right. So now I hope you've understood to a large extent what
the God who says that I will keep you who he is. और मैं अभी तक इस बात को उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतनी हद तक तो समझ गए होंगे कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो वो कहता है कि मैं यहोवा मेरा रक्षक है, हमारा रक्षक है, वो परमेश्वर हमारा रक्षक है। आप उस हद तक अभी तक समझ गए होंगे। You see, this omnipotent God is our ultimate place of safety. और ये जो परमेश्वर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है। Because this God reigns over every evil force, and he is aware of the past, present, and the future that come our way. क्योंकि मेरे प्यारों, जो हमारे सामने हमारे मन में सामने आता है, उसको जो है चलाने वाला, उसको जो है परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला, वो परमेश्वर है जो वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में उसको नियंत्रण करने वाला, चलाने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान है। You see, the Bible tells us that every day of our lives are recorded in his book. और मेरे प्यारों, इस बात को देखिए कि हर एक दिन जो है, जो दिनचर्या, जो भी कार्य होता है, वो सब बाइबल के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। You see, what does that mean? इसका मतलब क्या है? He knows every attack we will encounter and every challenge we will face in life. He knows that. और वो परमेश्वर भली भांति जानता है जो भी चुनौतियां हम सामने आएंगे, जो भी हस्तक्षेप, एनकाउंटर जो भी हमारे सामने, जिनका हम सामना करेंगे, उन सबको परमेश्वर जानते हैं। And this omnipotent God does not only warn us of an approaching danger, और यही वो परमेश्वर है जो परमेश्वर ऐसा नहीं केवल आने वाले खतरे से हमें चेतावनी दे दे, but he protects us as well. साथ ही साथ वो हमारी उस समस्या से, खतरे से रक्षा करता है, बचाता है। How does he save us? कैसे वो हमें बचाता है? Hiding us in himself, as how olden days people used to take refuge in a strong tower or fort. और उसी प्रकार से मेरे प्यारो, परमेश्वर अपने आप में हमें निर्देश देता है, हमें शरण देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुराने समय में लोग अपने आप को सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो महल हुआ करते थे, उनमें जो दृढ़ गढ़ और सुरक्षा के जो गढ़ बनाए जाते थे, अपने आप को शरण लेते थे। You see, we all know about the Lal Killa. That's the Red Fort in Delhi, is it not? और हम सभी लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि लाल किला जिसको कहते हैं, जो दिल्ली में है। Your fortress is a place where you hide, you run inside the fortress, then you are saved from the enemy. और मेरे प्यारों, क्या करते हैं, उस तालाब में हम लोग किसी भी खतरा जब आता है, तो जो महल है, जो उस राजा का महल है, क्या करते हैं, उसमें जा करके अपने आप को मनुष्य क्या करते हैं, आने वाला जो खतरा है उससे बचने के लिए उसमें छिपते हैं। You see, every king has got a fort. हर एक राजा, उसके पास ये जो महल है, गढ़ है, किला है। This Lal Killa is on account of a king who was ruling in Delhi many years back. और बहुत साल पहले जो लाल किला है दिल्ली का, वहां पर दिल्ली में जो राज्य करने वाला, शासन करने वाला राजा, उसके लिए बनाया गया था। Similarly, in Chennai also you got a St. George's Fort. और उसी के साथ साथ चेन्नई के अंदर भी सेंट जॉर्ज का जो किला है आपको मिलेगा। You see, what is the meaning of a fort? अभी देखिए, किले का मतलब क्या है? You see, when the enemy attacks, the enemy will always look for the fort in any city. और जब कोई भी आक्रमणकारी दुश्मन जो है, अगर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी भी शहर में जो किला होता है, उसको सबसे पहले वो ध्यान देते हैं उसको खत्म करने की। Now, before reaching the fort, around the fort is a moat. Moat is a place where full of water, deep water, and crocodiles are put inside that. That is surrounding the fort. After you cross the moat, only you can reach the fort.
और आपको पता है कि जो जो किला होता है, उस किले के आसपास जो है इस प्रकार की एक एक नरिया जैसी निकाल दी जाती है, जिसमें क्या होता है, पानी रहता है, और उस पानी में खतरनाक और बड़े बड़े जो है मगरमच्छों को उसमें छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर कोई भी आक्रमणकारी आता है तो सबसे पहले उसे उस नरिया से उसे निकल करके पार होकर के उस किले पर प्रवेश करना होगा। And you know how thick the walls of the fort are? आपको पता है कितनी चौड़ी और मोटी दीवारें होती हैं उसकी किले की? They are about 10 to 12 feet thick. और कम से कम 10 से 12 फुट मोटी मोटी दीवार, चौड़ी दीवारें होती हैं। You know how much is 10 to 12 feet? 10 से 12 फुट पता है आपको कितना है? A normal house has a height, the first floor, normal house has got about 10 to 12 feet high. और वो एक सामान्य घर जिसकी ऊंचाई जो है 10 से 12 फुट होती है, उतनी मोटी किले की दीवारें होती हैं। Correct. That is the thickness of that wall in the fort. यही वो मोटाई उन दीवारों की होती है। And you know what is the height? What is the height of those walls? आपको पता है कि उस दीवार का ऊंचाई कितनी है? It can be 14 feet and taller. और वो 14 फुट से लेकर के और ऊंचाई तक हो सकती हैं। So whenever people outside the fort get to know that an enemy is coming, the fort will open, the gates will open, then all the people will run into the fort, the gate will shut. और जैसे ही पता चलता है कि कोई राजा आक्रमण करने वाला है, कोई आक्रमणकारी, तो सब के सब लोग उस किले के द्वार खुल जाते हैं, उसमें सब के सब लोग दौड़ करके जाते हैं, छुप जाते हैं, उसके बाद द्वार बंद हो जाते हैं। Some forts, history says that some forts have a double wall, which means if one wall is 12 feet thick, you have double wall, which is 12 into 12, 24 feet thick. So no enemy can easily break and come into the fort. You see, that's how strong a fortress is. और मेरे प्यारों देखिए, ये जो किला है या गढ़ है, उसकी कुछ कुछ लोगों ने इस प्रकार से कहा है कि कुछ कुछ किले की जो दीवारें हैं 12-12 फुट की होती हैं। इसका मतलब 24 फुट की दीवार होती हैं, इतनी मोटी दीवार है। You see, this is the kind of fort which David is saying, my Lord is like that. He is the stronghold of my life. So why should I be afraid of anyone? और मेरे प्यारों देखिए, दाऊद राजा उस परमेश्वर के विषय में कहता है, वो मेरा परमेश्वर क्या है, दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं। All right. Now, so that is the extent of support and strength and defense the Lord is to his people. और यही वो मेरे प्यारों परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के लिए दिया गया साहस और ढाढ़स और सामर्थ्य है कि उसमें विश्वास रखे। All right, let's also read Psalm 27 verses 2 and 3. 26 का 2 और 3 हम लोग पढ़ेंगे भजन, 26 का 2 और 3। 27, 2 and 3. 27 and uncle? Yes, 27 verses 2 and 3. अच्छा, 27 का 1। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। Thank you, brother. You see, look at the confidence David has in his God. मेरे प्यारो देखिए, दाऊद राजा का जो है ढाढ़स और साहस देखिए जो परमेश्वर में उसको है। Read that verse, brother, once again. और उस वचन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे तो देखेंगे। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी पर से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए
उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चित रहूंगा। You see, Yes. how could David say like this in these two verses? और मेरे प्यारे, इन दो वचनों में दाऊद कैसे इस बात को कह सकता है? He can say like this only because he understands God's power. वो केवल और केवल ये बात इसीलिए कह सकता है क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ को उसने पहचान लिया है। You see, David never believed in the circumstances that surrounds him and puts him into trouble. He doesn't believe in that at all. दाऊद जो है अन्य जो उसको परिस्थिति जो उसको घेर ले उनमें विश्वास नहीं रखता था। And he never believed in his own power and his own strength. और वो अपने खुद की सामर्थ और ताकत में भी विश्वास नहीं रखता था। If you read these verses once again, 2 and 3, how can he have so much confidence in God? It is because he believed in nothing but only God. और जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि दाऊद कैसे इन बातों के में वो कह सका। इस बात को आप समझ पाएंगे कि केवल दाऊद ने खुद में अपनी सामर्थ्य में, चतुराई में, उसकी सेना में विश्वास नहीं रखा, पर उसको पता था मैंने जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए वो इस बात को कह सका। You see, a few years back when ISIS came up, ISIS came up, and we saw a lot of massacres, murders of Christians and believers and all that we have seen. Look, gruesome murders. We have seen that, isn't it? और मेरे प्यारों, कुछ ही साल पहले जो ISIS जो लोग आए जिन्होंने आकर के नरसंहार किया, and we have heard and read, seen on the television, we have seen in the WhatsApp, we have seen in the news, we have seen and heard this terrorist group, what all they were doing. और हमने टीवी में, मोबाइलों में, व्हाट्सएप में तमाम चीजों से इस चीज को देखा है, सुना है, जाना है। ये जो टेररिस्ट आतंकवादी के जो है आतंक मचाते हैं। And whenever we read or saw those things, our heart, there was a kind of a fear, is it not? और मेरी बहनों, जब कभी भी हमने इस प्रकार की परिस्थितियों, गतिविधियों के बारे में सुना, देखा, हमारे मन में कहीं वो भय आ जाता है। The more you're reading it, the more you're hearing about it, the fear increases. और जितना ज्यादा आप जो है उस परमेश्वर में भय खाएंगे, भय रखेंगे, उतना ज्यादा आपका मन में भय आ जाएगा, जितना ज्यादा आप इनके बारे में सुनेंगे। But when you turn off your television, turn off your radio, don't read your WhatsApp messages, relating to the IS, and then you focus on the Lord Jesus Christ, you know what happens? That instills great confidence and gives you peace of mind that with this God with you, there's no one who can come near you or touch you at all. और मेरे प्यारो, आप जो है इस परिस्थिति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने टीवी को बंद करके, मोबाइल को, रेडियो को बंद करके आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह की ओर। और जब आप उसकी ओर देखेंगे, आपके मन में वो सुकून, वो ढाढ़स, वो हिम्मत आपको मिलेगी। All right. Now I think it's 8 minutes past 8. Let me stop. I've still not finished answering the first question. यस, और आज जो है 8 मिनट ज्यादा हम लोगों ने ले लिया, लेकिन फिर भी अभी भी हमने पहले सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाए हैं। All right. We will continue, God willing, next week. प्रभु ने की इच्छा में हम लोग इस बात को अगले हफ्ते में जारी रखेंगे। I hope, dear brothers and sisters and dear believers, you've been able to take a peek. You've been able to take a small look at the omnipotence of God. और मैं ऐसा समझता हूँ प्यारों कि हम लोग उस परमेश्वर की सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, उसको हम उसकी थोड़ी सी झलक देख पाए हैं। So thank you very much for patiently listening. I hope the Word of God will speak to you. It will instill confidence and give you peace of mind that with God by us, with us, there's nothing for us to fear or worry. और मैं प्रभु में ऐसी उम्मीद है, मेरी अपेक्षा करता हूँ प्रभु आपको प्रभु में अपनी सामर्थ्य को प्रदान करे, शक्ति को, निर्भयता को प्रदान करे, ताकि हम जब परमेश्वर के साथ हैं उसमें हमें किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, किसी प्रकार का भय और डर हमारे जीवन में ना आए, वरन हमारा भरोसा उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है रखना है। Thank you very much. God bless you all. And also thank you very much, Deepu, for beautifully translating. God bless you. God bless all. Thank you very much.